Bismillahirrahmanirrahim. Hello and a warm hi to all my viewers and my students. I hope you are all doing fine and by the grace of Allah you would be in best of your health. Today we are going to start the goal of financial management. Why are you starting a firm basically? What is the goal of financial management? You are going to start a business or you are going to initiate a firm. Then why? What is the reason? What is the underlying goals in your mind that you are going to achieve? I will put this video in the playlist of business finance, so you can directly go to the playlist from my channel and you can watch these videos. Especially in your exams, these videos will be very helpful for you. Oh, the goal of financial management. Why are you starting a firm? I will keep on reading from this book and I will explain it easy and try to make it easy for you. For profit, uh, for profit business, because businesses are set up to earn the profit. So for profit business, the main goal of financial management is to make money or add value to the for their owners. Primary objective is making money, and the other objective is if you are making money at the same time you have to create value. Your value proposition should be higher, so you have to earn value for your business for the owners. All the three activities of business, which are financing, investment, or liquidity, they actually create value. Like it's saying in corporate finance, investment, value creation, and liquidity and financing, they are all giving you profit in amount of cash and also increasing the value of your firm. For example, investment, you can say capital budgeting, liquidity, cash and working capital management. It actually referred to the liquidity. And value creation, maximize shareholders' wealth or firm value. This is equal to share price into number of shares. You have to increase the number of shares so that the value for the shareholders should be increased. Okay. Equity, the amount of money raised by the firm that comes from the owners or the shareholders investment. This is the equity. जो शेयर होल्डर होते हैं वो जितनी पैसे आपकी कंपनी के लिए रेज करते हैं और कैसे रेज करते हैं, शेयर खरीद कर, उसको इक्विटी कहा जाता है. Equity is equal to shares. If you were to invest some money in a business in form of shares, the money you put in would be called equity. यानी आप पैसा इन्वेस्ट करें बिजनेस के अंदर, किस फॉर्म में? शेयर की फॉर्म में. क्या आपने शेयर खरीद लिए तो वो आपकी इक्विटी बन जाती है. और भी डिफरेंट गोल्स हैं. कौन कौन से गोल्स इन प्रोग्रेस हैं? और ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज मिल के, बेसिक इक्विटी और लायबिलिटी बेसिकली मिलके एक फर्म का एसेट बना रही होती हैं. सो डिफरेंट गोल्स इन प्रैक्टिस कौन कौन से हैं? कि सर्वाइव, ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वाइवल मोड पे है या वो स्टार्ट ले रही है अभी, तो अभी उसने जस्ट खुद को सर्वाइव करना है. फिर मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाना, दिस इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव. मिनिमाइज कास्ट, मैक्सिमाइज द सेल्स, सेल्स को ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज किया जाए. अवॉइड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड बैंकरप्टेसी, के इससे भी बचना कि ये ना हो कि आपकी फर्म बैंक से इतना लोन ले ले और कल को लोन वापिस ही ना कर सके तो उसको बैंकरप्टेसी का शिकार हो जाती है. सो यू हैव टू अवॉइड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड बैंकरप्टेसी. Then maintain steady earning growth. This is also a goal of the firm. And beat the competition or try to be the best in your own business. So these are few goals of your organization. The financial manager acts in shareholders' best interest by making decisions that increase the value of equity. This is the job of financial manager to make such decisions that create value or that increase the value of your equity. Hence, there is one overriding aim for business, और वो business का वो goal कौन सा है? Maximizing the firm's value or current value per share of the existing equity. कि जो आपके पास शेयर हैं उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जाए. अगर 10 रुपए का शेयर है तो आप अपनी फर्म को इतना इंप्रूव करें कि वो 10 रुपए का शेयर 15 रुपए का शेयर बन जाए, मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा की जाए. ठीक है. तो ये कुछ गोल्स हैं फर्म के, कि वो फर्म ने कि माइंड में क्या क्या गोल्स होने चाहिए. फिर फाइनेंशियल मार्केट एंड द कारपोरेशन, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं.
फाइनेंशियल मार्केट्स प्ले अ फंडामेंटल रोल इन द ऑपरेशंस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उनका एक बड़ा पिविटल, बड़ा वाइटल रोल होता है। द स्टॉक मार्केट विल ऑलवेज बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैन इन्फॉर्म मैनेजमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर कंपेटिटर्स, देयर सप्लायर्स, देयर कस्टमर्स एंड इकोनॉमी एज अ होल। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट है, ये बड़ा अहम रोल प्ले करती है। आपको आपके कंपेटिटर्स की परफॉर्मेंस जानना, या आपके जो सप्लायर्स हैं, और वो दूसरी फर्म्स के भी अगर सप्लायर हैं, तो उनकी क्या रेप्यूट है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, फिर कस्टमर कितने आपने एंगेज किए हुए हैं, और ओवरऑल जिस इकोनॉमी में आप परस्यू कर रहे हो, जिस इकोनॉमी में आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, उसकी क्या सिचुएशन है। इसके बारे में फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं, ये बड़ा पिवटल रोल प्ले करती हैं। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज दैट they facilitate the flow of money from those that have surplus cash towards those that need financing। फाइनेंशियल मार्केट का रोल बेसिकली क्या है कि वो फ्लो ऑफ कैश में बड़ा हेल्प करती हैं। सरप्लस कैश, जहाँ पे कैश ज्यादा है, फ्रॉम दैट डायरेक्शन टुवर्ड्स द डायरेक्शन कि जहाँ पे फाइनेंसिंग की जरूरत है, उसमें ये फ्लो करती हैं कैश को। डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स फ्लो ऑफ कैश में हेल्पफुल हैं कि सरप्लस टुवर्ड्स वेयर फाइनेंसिंग इज नीडेड। जो डिफरेंट सोर्सेज हैं फाइनेंसिंग के, वो कौन से हैं? वो एक है प्राइवेट इन्वेस्टर्स। प्राइवेट इन्वेस्टर है, एक बंदा है, उसके पास ही हैज एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, सो वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, नंबर वन। नंबर टू, बैंक लोन्स। जो बैंक्स हैं, ये लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कि सोर्स ऑफ फाइनेंस है। फिर इक्विटी शेयर्स, कंपनी अपने शेयर सेल करे और पैसा कमा ले, ये भी है। फिर बॉन्ड्स, ट्रेडेबल एंड इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ मनी इन द एंड। फिर बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स भी बेसिकली जो ट्रेडेबल बॉन्ड्स क्या हैं, आप उन्हें किसी भी वक्त बेच के अपना पैसा रिटर्न कर लेते हो। तो कंपनी बॉन्ड्स भी इशू करती है ताकि पैसा जनरेट कर सके, पैसे को अपनी कंपनी में लेके आ सके। फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, कंपनी शॉर्ट टर्म लोन ले लेती है या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करती है, और ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं। मैं इस लेक्चर को यहीं पर रोकता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट को देखेंगे। थैंक यू सो मच।